जो आज का हमारा लेक्चर है it is about the storage services that AWS or AWS Cloud offers. So, and we have discussed these storage services. Um, these are like block storage, object storage, file storage. So ये तीन types की storage services हमने discuss की थी previously, and we have seen using block storage in AWS instances. And S3 को थोड़ा सा हमने discuss किया, but we have not used it yet. और जो फाइल स्टोरेज है उसके ऊपर भी ज्यादा डिस्कशन नहीं की. So now we will formally start in this domain. We will talk about each of these storage services one by one. So we start with the core services. Again, a review of that core services. हमने अभी तक VPC कर दी है, which is the networking service that Amazon provides. Then we have talked about the compute service. Compute के अंदर हमने EC2 instance को देखा, containers को देखा, and then we also talked about serverless computing. Lambda functions हमने देखे थे. We also covered identity and access management in the security, which is another core service of the cloud. ये भी हो गई. And the last two things that are left जो core services में है वो storage and databases है. Database is also a storage service, but of course it is a structured storage mechanism. So इसको हम separately discuss करेंगे. Today we are going to start Amazon EC2 Amazon block storage, elastic block storage. और block storage क्या होती है इसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था कि it is a non-volatile storage. It's kind of storage raw, or in other words, you can call it raw storage that you buy, you get it, and then what you have to do is you have to make file system on that storage, and then you can store data or you can install some applications on the block storage. So ये इसका main इसके usages हैं. It's a non-volatile. Amazon के context में अगर बात करें तो it is the specific thing that we talk about is that it is automatically replicated in the availability zone. So अभी हमने availability zones को discuss नहीं किया, but थोड़ी सी discussion इस पे जो पहले हुई थी वो ये है कि we have different availability zones. So for example, if you are running an EC2 instance in one availability zone, then and you attach a block storage to that EC2 instance, that means that the block storage should be in the same availability zone. That is important to remember, that if you are attaching a block storage to an instance, both should be in the same availability zone. So because otherwise it would be very time consuming. that जो इसका जो थ्रूपुट है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी, तो उसको मेंटेन रखने के लिए सेम अवेलेबिलिटी जोन में इसको होना चाहिए. Another important and interesting thing is that when you have attached a block storage with your EC2 instance, you can dynamically scale up and scale down. So that is, you do not need to shut down the instance and attach a new storage. So you just change the size of the storage and other properties, and you will get that impact immediately within minutes. So that means that it's a very good feature that you can have a machine EC2 instance which you can start with something with lesser amount of storage, but as the data or the requirements increase, you just increase the storage volume. Okay, so a key difference between block storage and file storage is block storage and object storage is that in object storage हम जब बात करते हैं we say that this is one object, और S3 is a kind of object storage जो फिर बाद में हम इसके बाद देखेंगे next section में. Just a minute. जी 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 कर जी जी. So we will talk about EC2, sorry, block storage and object storage. So object storage एक object है. इस अगर इसकी simple example लें तो आप zip file को ज़हन में रख सकते हैं. So if you think about a zip file which is one object, उसके अंदर बहुत सी files होंगी, but if you want to change any file, you have to
चेंज द होल जिप फाइल, आप उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, आप उस एक एक पार्ट को चेंज करेंगे एंड देन यू जिप इट अगेन। तो इस तरह से करके आपकी ऑब्जेक्ट स्टोरेज जो है, इट्स अ वन पीस ऑफ स्टोरेज ऑब्जेक्ट। और ब्लॉक स्टोरेज की अगर एग्जांपल लें तो यू कैन थिंक ऑफ लाइक 10 फाइल्स सेपरेटली, और उनमें से किसी एक फाइल को आप चेंज करें तो आपको सारी बाकी 9 फाइल्स को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू। Okay. Okay. So coming back to the topic, so we were discussing about difference between block storage and object storage. सो ब्लॉक स्टोरेज जो है वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि अगर आप इफ यू आर यूजिंग ब्लॉक स्टोरेज, इट विल गिव यू मोर बेटर थ्रूपुट एंड लेटेंसी। बट लेकिन और क्यों ये देगी, व्हाई व्हाई इट वुड गिव यू बेटर थ्रूपुट एंड लेटेंसी, बिकॉज इफ यू आर चेंजिंग समथिंग in a object storage, that means you will have to change the whole file. So for example, it is a, अगर ये 1 GB की फाइल है और आप ऑब्जेक्ट स्टोरेज यूज कर रहे हैं, तो आपने उसमें अगर एक वन करेक्टर भी चेंज करना है तो आपको पूरी की पूरी स्टोरेज को चेंज करना पड़ेगा। सो पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट को चेंज करना पड़ेगा और फिर अपलोड करनी पड़ेगी। एंड इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट ये होगा कि आपको 1 GB डेटा ट्रांसफर रीड और राइट करना पड़ेगा, एंड दैट विल डेफिनेटली चेंज द लेटेंसी एंड थ्रूपुट। इसको इसको ज्यादा ज्यादा थ्रूपुट, ज्यादा लेटेंसी इसमें आ जाएगी। लेकिन अगर ये चीज ब्लॉक स्टोरेज के अंदर आप करें एंड यू आर चेंजिंग ओनली वन पार्ट ऑफ योर होल डेटा, ये पूरा ब्लॉक है उसकी एक एक करेक्टर को आप चेंज कर रहे हैं, देन दैट वुड मीन के आपने 1 GB डेटा ट्रांसफर नहीं किया ओवर द इंटरनेट, तो आपकी लेटेंसी और थ्रूपुट लेटेंसी कम रहेगी बिकॉज इट इज ओनली वन करेक्टर, सो इट विल बी क्वाइट फास्ट। और थ्रूपुट भी इंक्रीज इस तरह से होगी बिकॉज यू आर नॉट कंज्यूमिंग लॉट्स ऑफ बैंडविड्थ, और थ्रूपुट इसकी बेहतर रहेगी। But of course, with these advantages, you will have to bear more cost. So इसकी cost होगी block storage की, वो that would be more than S3 storage like object storage. So ये इसका थोड़ा सा cloud के context में इन दोनों का जो difference है, and not technologically but from the from the technical perspective, कि throughput और latency block storage की बेहतर है और cost उसकी ज्यादा है। So now we move on to Amazon EBS, which we are talking about, which is a block storage in provided by the Amazon, and it allows you to create individual storage volumes and attach them to the EC2 instances. We have seen that कि हम block storage को हम क्यों use कर रहे होते हैं। अम, अम, एक इसमें जो इसकी अवेलेबिलिटी या अवेलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो Amazon जितनी आपकी ब्लॉक स्टोरेजेस होंगी, ब्लॉक स्टोरेज जितनी भी आप बाय करेंगे, वो रेप्लिकेट की जाएंगी इन द सेम अवेलेबिलिटी जोन, विच मींस दैट अगर अगर इन केस एक स्टोरेज अगर क्रैश कर जाती है तो दैट वुड बी रिप्लेस्ड बाय द सेकंड स्टोरेज इन द अदर इन द सेम अवेलेबिलिटी जोन। तो इसकी रेप्लिकेशन हो रही होगी, विच इज अ गुड थिंग। um, so we one more thing we can do with the block storage is that अगर आपने एक वॉल्यूम है आपकी EC2 इंस्टेंस के साथ एंड आपने उसके ऊपर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल किए हुए हैं एंड यू वांट जस्ट अ मिनट आई थिंक सो अगर आपने एक ब्लॉक स्टोरेज बाय की हुई है और आप चाहते हैं आपने उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया एंड यू इंस्टॉल सम मोर सॉफ्टवेयर, और फिर आप ये चाहते हैं कि इसका मैं बैकअप लेना चाहूंगा, तो आप अपनी पूरी वॉल्यूम का बैकअप ले सकते हैं, एंड दैट बैकअप इज कॉल्ड अ स्नैपशॉट। सो स्टोरेज जो ब्लॉक स्टोरेज है उसकी आप किसी भी स्टेज पे स्नैपशॉट ले सकते हैं। दैट वुड बी अ फाइल, एक फाइल होगी, सिंगल फाइल होगी, स्नैपशॉट फाइल जिसको हम कहेंगे, और वो फाइल उसको आप स्टोर करवा सकते हैं Amazon S3 में, बिकॉज S3 इज अ ऑब्जेक्ट स्टोरेज। तो बेसिकली हम क्या कर रहे होंगे कि ब्लॉक स्टोरेज का बैकअप लेने के लिए एक स्नैपशॉट लेंगे, एंड दैट विल मेक एन ऑब्जेक्ट, एंड दैट ऑब्जेक्ट वुड बी बेसिकली अ स्नैपशॉट ऑफ द ब्लॉक स्टोरेज, और उसको हम S3 के ऊपर फिर स्टोर कर सकते हैं। सो वी कैन डू इट, वी कैन जस्ट
set this setting कि ये इसको automatically कर दिया जाए and Amazon would be doing it for you. But the only thing you should remember is कि जब आप इसको Amazon S3 के अंदर स्टोर करेंगे स्नैपशॉट्स को, तो ऑफ कोर्स इसकी कोई कोई साइज होगा. तो इमेजिन कि आपने 16 GB की आपकी ब्लॉक स्टोरेज थी और उसकी आपने स्नैपशॉट ली, तो दैट स्नैपशॉट वुड बी लाइक 16 GB. आप सारी यूज तो नहीं कर रहे होंगे एट एट दैट टाइम. फॉर एग्जांपल आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल की, तो मे बी आप 10 GB यूज कर रहे हैं, तो 10 GB की आपकी एक स्नैपशॉट बन जाएगी. बट दैट स्नैपशॉट जो एक फाइल है जो आप S3 के ऊपर फिर आप स्टोर करेंगे एज एन ऑब्जेक्ट फाइल, तो वो 10 GB की स्टोर होगी, और उस 10 GB की जो कॉस्ट है वो आपको पे करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा. सो दैट वुड लाइक बैकअप के तौर पे आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी. सो ब्लॉक स्टोरेज की कॉस्ट भी आप पे कर रहे हैं, एंड देन द स्नैपशॉट दैट यू आर सेविंग ऑन Amazon S3, उसकी कॉस्ट भी आप पे कर रहे होंगे इवेंचुअली. ब्लॉक स्टोरेज के यूजेस जो हैं, दे आर यूज्ड एट बूट वॉल्यूम्स एंड स्टोरेज, एक्स्ट्रा स्टोरेज टू टू बी अटैच्ड टू EC2 इंस्टेंसेस. जो इस काम के लिए यूज हो रहा होता है, वी कैन यूज ब्लॉक स्टोरेज टू अटैच टू अ मशीन एंड देन क्रिएट फाइल सिस्टम. सो EFS जो है, फाइल स्टोरेज जो है, जो बाद में हम देखेंगे, वो भी हम इससे क्रिएट कर सकते हैं. We can also create database host using EBS. So since EBS is raw storage, so that means it's like a like your hard disk. जैसे आप hard disk होती है ना, तो जब हम block storage की बात करते हैं, तो it is like hard disk that you have hard disk of 500 GB. और फिर उस 500 GB पे आप क्या करते हैं, आप सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर रहे होते हैं, आप उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर रहे होते हैं, आप फाइल्स को भी स्टोर कर रहे होते हैं, अपनी इमेजेस और वीडियोस को भी स्टोर कर रहे होते हैं. बट यू कैन ऑल्सो मेक इट अ डेटाबेस होस्ट. मीन्स कि आप उसके ऊपर कोई डेटाबेस सर्वर रन करेंगे, और डेटाबेस सर्वर जारी बात है कोई कोई स्टोरेज कंज्यूम कर रहा होगा, तो वो आपकी EBS से ही डेटाबेस सर्वर बनेगा. तो यू कैन ऑल्सो मेक एनीथिंग विद योर EBS. और डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए भी आप इसको, यानी कि जो सॉफ्टवेयर्स आप इंस्टॉल कर रहे हैं, डिफरेंट एंटरप्राइज एप्लीकेशंस कोई आप इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप डेटाबेस यूज करेंगे. जी. तो डेटाबेस सर्वर EBS पे रन हो गए हार्ड डिस्क पे? मैं नहीं ये समझ गई। देखें, EBS पे रन होने वाली बात नहीं. सो आई एम सेइंग कि आपने एक EC2 इंस्टेंस ले लिया. जैसे होता है ना कि आप, फॉर एग्जांपल, मैंने एक कंप्यूटर खरीदा, और वो कंप्यूटर जो है उसके अंदर आई हैव कंप्यूटिंग पावर. ठीक है, मैंने वो बाय कर ली, लाइक इस कोर आई 10 है, 11 है, जितना भी है. इसकी रैम मैंने परचेज की. बट देन मैं चाहता हूँ कि इसको मैं डेटाबेस सर्वर बना दूं. तो डेटाबेस सर्वर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उसके लिए इसके ऊपर, इस अपने कंप्यूटर के ऊपर मेरे पास कोई स्टोरेज होनी चाहिए ना. सो मेरे पास जारी बात है हार्ड डिस्क है. सो मैंने हार्ड डिस्क भी बाय की. सो वो जो हार्ड डिस्क है उसके ऊपर मैंने डेटाबेस सर्वर बनाने के लिए मैंने SQL सर्वर इंस्टॉल किया. सो वो मैंने किसके ऊपर इंस्टॉल किया? मैंने अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के ऊपर इंस्टॉल किया. तो और वो एग्जैक्टली इसी तरह जो ब्लॉक स्टोरेज आपकी हार्ड डिस्क है, चाहे वो HDD है या SSD है. दोनों दोनों टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं, और Amazon भी प्रोवाइड करेगा, अभी हम देखते हैं उसको. तो आपने बेसिकली EC2 इंस्टेंस के साथ जब ब्लॉक स्टोरेज को अटैच करते हैं, तो इट इज लाइक अ हार्ड डिस्क फॉर दैट योर EC2 इंस्टेंस. अब वो रूट वॉल्यूम भी हो सकती है और एक्स्ट्रा स्टोरेज भी हो सकती है. बट जो भी है, इट डिपेंड, ये आपकी मर्जी है कि आपने जो SQL सर्वर इंस्टॉल करना है अपने उस EC2 इंस्टेंस के अंदर, वो आपने रूट वॉल्यूम के ऊपर इंस्टॉल करना है, या आपने एक्स्ट्रा स्टोरेज पे इंस्टॉल करना है. जिस तरह जब हम कंप्यूटर के ऊपर कोई कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट तो वो हमारी रूट वॉल्यूम पे इंस्टॉल हो रहा होता है. बट इफ यू वांट टू से कि अच्छा नहीं, ये वाला मेरा इस जगह पे नहीं, किसी और जगह पे इंस्टॉल हो, तो वो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम को गाइड कर सकते हैं. सो डेटाबेस होस्ट बनाने से मुराद यही है कि आप SQL सर्वर इंस्टॉल कर रहे हैं, बट देन इंस्टॉलेशन के लिए आपको कोई स्टोरेज चाहिए, और हार्ड डिस्क चाहिए, और वो हार्ड डिस्क जो है वो आपको EBS प्रोवाइड करे. सो EBS इज बेसिकली द हार्ड डिस्क. ओके सर, थैंक यू, समझ आ गई। ओके. सो इट्स लाइक एन एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव. सो जब जब भी हम EBS की बात करेंगे, another thing to remember is that जब हम Amazon मशीन इमेजेस की हमने बात की थी, तो Amazon मशीन इमेज क्या होता है? Amazon मशीन इमेज हमें हमारा EC2 इंस्टेंस को अगर हम जब क्रिएट कर रहे होती हैं, तो AMI मशीन इमेज जो है वो ये बता रहा होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा, सॉफ्टवेयर कौन से इंस्टॉल होंगे,
तो ये सारी इंफॉर्मेशन बता रहा होता है. And that means that the Amazon AMI will eventually will have the EBS, जो आपकी EBS वॉल्यूम है वो भी AMI का पार्ट होगी. ठीक है, so that AMI will have included this EBS. और हमने ये जो AMI होगा ये कहीं पे स्टोर्ड होगी, एंड देन दैट कुड बी इन द Amazon S3. एक चीज मैंने आपसे भी बात की, इसका बैकअप करने के लिए यू विल यूज, जब आप बैकअप लेती हैं तो जो एक फाइल बनती है पूरी पूरी वॉल्यूम का, जब आप बैकअप लेंगे तो एक फाइल बनेगी, चाहे वो रूट वॉल्यूम है या नॉन रूट वॉल्यूम है. तो एक फाइल बनेगी, उसको हम स्नैपशॉट कहेंगे, और स्नैपशॉट विल हैव एवरी इंफॉर्मेशन और ऑल द डेटा दैट वी हैव ऑन दैट वॉल्यूम. सो वो हमारी स्नैपशॉट क्रिएट होगी. सो फर्स्ट टाइम जब हम ये स्नैपशॉट क्रिएट करेंगे तो दैट वुड बी कॉल्ड बेसलाइन स्नैपशॉट, और बेसलाइन स्नैपशॉट. और जब उसके बाद हम इंक्रीमेंट्स इसके ऊपर दोबारा बैकअप करेंगे तो वी विल नॉट बी क्रिएटिंग लाइक लाइक फॉर एग्जांपल आपने आपकी वॉल्यूम है 300 GB की, तो पहली जो स्नैपशॉट बनी उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा, 300 GB की एक स्नैपशॉट बन जाएगी, यानी कि एक फाइल बनी 300 GB की. अब आपने उसके ऊपर उस स्नैपशॉट, ये तो आपने बैकअप लिया था ना, सो इमेजिन दैट ओके यू हैव दिस स्नैपशॉट इन S3 नाउ. So imagine that you are still using your EC2 instance, जिसकी आपने अभी EC2 instance की वॉल्यूम की का स्नैपशॉट बनाई थी, एंड यू इंस्टॉल अनदर सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आप उसके ऊपर इंस्टॉल कर लेते हैं, एंड वो इंस्टॉल करते हैं तो 100 GB और आपकी कंज्यूम होगी. सो नाउ यू हैव 400 GB की आपकी वॉल्यूम का साइज हो गया. सो अगर आप दोबारा स्नैपशॉट लेंगे तो इसकी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं बैकअप लेने की. उसमें एक इंक्रीमेंटल टेक्निक होती है, आई एम राइट नाउ टॉकिंग अबाउट दैट इंक्रीमेंटल टेक्निक, कि आप ये करना चाहें आप दोबारा बेस लाइन स्नैपशॉट भी बना सकते हैं बैकअप लेते हुए, बट ऑफ कोर्स वी वुड नॉट लाइक टू क्रिएट अनदर 400 GB फाइल. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इंक्रीमेंटल बैकअप जो करेंगे, तो बेस लाइन स्नैपशॉट रहेगी, एंड देन 100 GB की एक इंक्रीमेंटल फाइल बन जाएगी, और वो हमारी इंक्रीमेंटल बैकअप हो जाएगा. सो इस तरह के बैकअप्स लिए जा सकते हैं. बट इससे फायदा क्या होगा कि फॉर एग्जांपल एट एनी स्टेज यू हैव दैट स्नैपशॉट. और मिसाल के तौर पे अभी मेरा कंप्यूटर है, जो मेरा एग्जिस्टिंग कंप्यूटर है, इसके ऊपर मैंने बहुत कुछ इंस्टॉल किया हुआ है, एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दिस. तो आज ये अगर क्रैश कर जाए, या सपोज मैं ये कहूँ कि यार ये मेरी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जो लास्ट टाइम जिस टाइम हमने लेक्चर में देखा था, जो ताहा ने दिया था, उसमें ही वर टॉकिंग अबाउट क्यूबन, नॉट नॉट क्यूबरनेटिस रादर डॉकर्स. तो डॉकर इंजन इंस्टॉल किया हुआ है, कंटेनर्स बने हुए हैं, सारी मेहनत हुई हुई है, अब वो एनवायरनमेंट क्रिएट हुई हुई है, एंड देन वो सिस्टम क्रैश कर जाता है, तो मेरे पास बैकअप होना चाहिए. तो अगर हमारे पास स्नैपशॉट मौजूद है, वॉल्यूम की स्नैपशॉट मौजूद है, तो मेरे लिए बड़ा आसान होगा. मैं एक EC2 इंस्टेंस बनाऊंगा, और उस EC2 इंस्टेंस के साथ ये जो स्नैपशॉट थी इसको मैं अटैच कर दूंगा. सो इससे मैं एक वॉल्यूम क्रिएट करूंगा यूजिंग दिस स्नैपशॉट. तो मैं जिस स्टेज पे मैं क्रैश किया था, वही स्टेज दोबारा मुझे मिल जाएगी. तो एक तो ये एडवांटेज हो गया, सो बैकअप मैंने कर लिया. दूसरा इसका एडवांटेजेस एट टाइम्स ये भी होते हैं कि AMIs में भी हमने थोड़ा सा देखा था कि AMI भी इस काम के लिए यूज होती है, बट स्नैपशॉट्स के केस में भी हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं उसी जो जो मेरा अभी इस वक्त मेरा जो कंप्यूटर है, आई वांट टू मेक अ कॉपी ऑफ दिस, और वो कॉपी मैं अपने किसी कुलीग को देना चाहता हूँ, क्योंकि आई हैव दिस मशीन सेटल्ड, मैंने सेटअप की हुई है, और जो इसके अंदर इंस्टॉलेशंस भी हैं, इसके ऊपर सब कुछ है. तो मैं एक और EC2 इंस्टेंस क्रिएट करूंगा, और इसी स्नैपशॉट जो मैंने अभी अपने करंट PC के लिए या इसकी वॉल्यूम के लिए, वो मैं उसके साथ अटैच कर दूंगा. दैट वुड मीन कि वो जो दूसरा EC2 इंस्टेंस है, दैट वुड बी एग्जैक्टली सिमिलर, वो उसका क्लोन बन जाएगा जो मेरा करंट स्टेट में अभी ये वाला सिस्टम है. एंड देन आई कैन जस्ट रिमूव दिस द EC2 इंस्टेंस, जो मेरा पहला इंस्टेंस था उसको मैं रिमूव कर दूं, और सेकंड इंस्टेंस को यूज करना शुरू कर दूं. सो वी कैन डू दिस इन अ इंटरेस्टिंग वे. सो स्नैपशॉट्स का ये एडवांटेज भी लिया जा सकता है. ओके, सो नाउ वी टॉक अबाउट कि ये EBS जो वॉल्यूम्स हैं, Amazon हमें क्या क्या ऑफर कर रहे हैं. सो बेसिकली Amazon प्रोवाइड्स अस टू टाइप्स ऑफ ब्लॉक स्टोरेजेस. एक SSD है और एक HDD है, एग्जैक्टली इन द सेम वे लाइक वी डू बाय SSD और HDD व्हेन वी बाय फिजिकल कंप्यूटर्स. तो
अगर एसएसडी में देखें, वी हैव टू ऑप्शंस। एक जनरल पर्पस एसएसडी है और एक प्रोविजनड आईओप्स है। प्रोविजनड आईओप्स मींस कि प्रोविजनड इनपुट आउटपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर सेकंड। सो प्रोविजनड आईओप्स, तो इनकी इनकी अगर इनकी स्पीड और इनकी टेक्नोलॉजी को देखें तो ये वेरी कर रही हैं, एंड ऑफ कोर्स कॉस्ट एज वेल। बट हम इसको कॉस्ट को भी हम देखते हैं थोड़ी देर में। और दूसरी टेक्नोलॉजी है हार्ड डिस्क, जो मैग्नेटिक डिस्क हैं, उसकी बेसिस पे ये काम कर रही होगी। तो इसमें दो ऑप्शंस हैं अगेन। we have throughput optimized and cold hard disk drive। so ये चार ऑप्शंस हैं हमारे पास जो हम यूज कर सकते हैं ईबीएस के लिए। सो दैट मींस कि जब हम ईबीएस वॉल्यूम क्रिएट करेंगे तो हमारे पास ये चारों ऑप्शंस होंगी। अगर हमने स्टोरेज अपने EC2 इंस्टेंस के साथ अटैच करनी है तो वी विल हैव दीज फोर ऑप्शंस। बट ऑफ कोर्स अगर एक एक लिमिटेशन इधर जरूर है कि अगर आपने रूट वॉल्यूम क्रिएट करनी है तो देन यू कैन नॉट यू डू नॉट हैव चॉइस ऑफ एचडीडी। सो रूट वॉल्यूम के लिए हमेशा एसएसडी ही यूज की जाएगी। तो देन इट इज अप टू यू कि आप एसएसडी कितने साइज की वॉल्यूम बनाना चाह रहे हैं। तो मैक्सिमम इसकी जो लिमिट है इन चारों टाइप्स की, इट इज 16 टेराबाइट्स, विच इज गुड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। इसी तरह अगर इनकी थ्रूपुट देखी जाए तो एसएसडी की जो थ्रूपुट है, जो जनरल पर्पस है, 250 मेगाबिट्स मी बिट्स पर सेकेंड इसको कहें या मेगाबिट पर सेकेंड कहें, दो डिफरेंट यूनिट्स हैं एंड ऑलमोस्ट तकरीबन सेम ही है इसमें। मतलब इसको अगर आप स्टडी करें तो ये वन ऑफ देम इज 2 रेज टू पावर समथिंग और अदर इज 10 रेज टू पावर समथिंग। बट इवेंचुअली मेगा इज 10 रेज टू पावर और मी इज लाइक 2 रेज टू पावर। तो वो 1000 नहीं, 1000 नहीं, मेगा अगर हम बात कर रहे हैं तो इट इज लाइक मिलियंस, 250 मिलियन बिट्स पर सेकंड। सो ये इसकी इसकी थ्रूपुट है। या इसको आप जिस तरह से भी रिप्रेजेंट करें, सो इसमें इतना ज्यादा कंफ्यूज डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सो आपकी जो जनरल पर्पस एसएसडी है उसकी उसकी जो थ्रूपुट है 250 है। जो प्रोविजन आईओप्स है उसकी 1000 है। एंड देन थ्रूपुट ऑप्टिमाइज्ड की 500 है, बट नॉर्मली लाइक कोल्ड की 250 है। सो दिस इज द थ्रूपुट व्हिच मींस दैट हाउ मच डेटा you can get in per second using these EBS volumes। और देन वी हैव मैक्सिमम इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर सेकंड पर वॉल्यूम। यानी कि एक अगर आपने वॉल्यूम ली हुई है, एसएसडी ली है, ईबीएस की एसएसडी बाय की हुई है, तो मैक्सिमम इन तीन चारों ऑप्शन में देखा जाए तो एसएसडी इज मच फास्टर। एंड वी नो दैट एचडीडी मैग्नेटिक डिस्क जो है वो हमारी आईओ ऑपरेशंस उसके काफी स्लो होते हैं। सो आईओ इज बेसिकली आईओप्स इज आईओ ऑपरेशन। तो जो हार्ड डिस्क है उसके काफी कम है, बट जो जो एसएसडी है उसके उसके काफी ज्यादा आईओ ऑपरेशंस, काफी फास्ट रीड एंड राइट है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हो रही होती हैं। और इसमें बेस्ट जो है वो प्रोविजनड आईओप्स है जिसके 64,000 इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर सेकंड इसकी इसकी कैपेसिटी है। सो विच इज टू मच। ऑफ कोर्स अगर इस तरह का कोई यूज केस हो तो हम इसको बाय करेंगे, बट इट वुड बी क्वाइट एक्सपेंसिव। लेकिन यूजुअली हमारी EC2 इंस्टेंस के साथ जो एसएसडी अटैच होती है वो इस तरह की हो रही होती है। और एक्स्ट्रा स्टोरेज अगर आपको चाहिए तो यू कैन जस्ट यूज दिस। ये ऑफ कोर्स ये काफी चीपर होंगी एज कम्पेयर टू एसएसडी। इसके नेक्स्ट स्लाइड में चंद एक यूज केसेस लिखी हुई हैं कि कौन से केस में कौन सी टाइप आपको यूज करनी चाहिए। सो फॉर एग्जांपल यू कैन सी दैट नॉर्मल केसेस में आप जनरल पर्पस एसएसडी यूज करते हैं विच इज लाइक फॉर बूट वॉल्यूम। सिस्टम बूट वॉल्यूम्स के लिए यूज होता है। वर्चुअल डेस्कटॉप आपने बनाना है, ठीक है। नॉर्मल इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस के लिए इट इज गुड एनफ। डेवलपमेंट एंड टेस्ट एनवायरनमेंट्स आप इससे क्रिएट कर सकते हैं। सो इफ यू आर क्रिएटिंग अ डेवलपमेंट और टेस्ट एनवायरनमेंट, देन EC2 इंस्टेंस के साथ आप जनरल पर्पस SSD रूट वॉल्यूम अटैच कर लें। सो दैट इज द रिकमेंडेड ऑप्शन। अ, दूसरी, अगर अगर आपका कोई ऐसा काम है विच इज लाइक वेरी क्रिटिकल, जिसके अंदर जिसको कहते हैं ना रियल टाइम एप्लीकेशंस हैं आपकी, जिसके अंदर आप यू कैन नॉट वेट फॉर इवन मिली सेकेंड्स, तो उसमें आपको प्रोविजन आईओप्स को के यूज केस को देखना होगा।
you can think about large database workloads like banking system है या stock exchange है. So where you have like many like thousands of transactions happening in 1 second. So parallel transactions हो रही हैं. तो उसमें आपको you cannot wait for long times. So ये of course ये तो बिल्कुल ही out of question है. But जाहिर बात है वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग डेटाबेसेस. ठीक है, जो डेटाबेस होस्ट की हमने पहले बात की थी. तो डेटाबेस होस्ट हम बना रहे हैं और एसएसडी हम यूज करेंगे. एसएसडी में अगर ये वाला यूज करेंगे तो इसकी जो लिमिटेशन है आईओप्स की मे बी दैट वुड लाइक वो हमें हमारी एप्लीकेशन को काफी स्लो डाउन कर देगी. सो अगर क्रिटिकल बिजनेस एप्लीकेशंस हैं तो आप प्रोविजनड आईओप्स यूज करें. देन दी हार्डेस्ट एचडीडी ऑप्शन जो है उसमें मेन थिंग टू रिमेंबर इज दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड एट बूट वॉल्यूम बोथ ऑफ देम. बट ऑफ कोर्स इफ हमारे पास थ्रूपुट ऑप्टिमाइज्ड अगर हमने बिग डेटा के ऊपर ऑपरेशन करना है तो दैट मींस लॉट्स ऑफ डेटा इज मूविंग अराउंड. सो दैट मींस के हम थ्रूपुट ऑप्टिमाइज एचडीडी यूज करेंगे विच विल बी cheaper than this general purpose SSD. So that would be good enough. वेयर हाउसेस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं. लॉग प्रोसेसिंग के लिए यूज कर सकते हैं. सो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट बैड, दिस इज गुड एज वेल, बट इट्स नॉट एज गुड एज एसएसडी. और अगर आपने बैकअप्स लेनी है, लॉन्ग लॉन्ग टाइम स्टोरेज लेनी है, देन दिस इज द राइट टाइप ऑफ स्टोरेज. कोल्ड स्टोरेज एचडीडी आप यूज करें एंड दैट वुड गिव यू अ चीपर ऑप्शन, चीपर सोल्यूशन. इसको भी हम थोड़ी देर में देखेंगे बाद में जब हम S3 को पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट स्टोरेज को. वी विल सी दैट उनका एक सॉल्यूशन है ग्लेशियर के नाम का. सो एंड दैट ग्लेशियर इज एन ऑब्जेक्ट स्टोरेज ऑफ कोर्स, बट वो चीपर स्टोरेज है. सो ऑफ कोर्स उस ऐसी हार्ड डिस्क आप यूज करें जिसकी थ्रूपुट या जिसके ऊपर आपने बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर एफर्ट नहीं की हुई कि वो दैट इज रियल टाइम. बट अगर उसके ऊपर वो टेक्नोलॉजी नहीं है, इफ दैट इज नॉट दैट very advanced technologically, then it would be cheaper in cost. So sometimes we just want to have backup. तो उसके लिए ये अच्छा यूज केस हो सकता है. ओके, सो some more features to discuss. हमने अभी डिस्कस किया था snapshot. So what is a snapshot? It's basically taking backup or taking a exact copy or clone of your EBS वॉल्यूम. उसका एग्जैक्ट कॉपी आप बना लेते हैं और उसको हम स्नैपशॉट कहते हैं. स्नैपशॉट्स को हम किसी भी वक्त क्रिएट कर सकते हैं और स्नैपशॉट जो बनती है इट इज अ सिंगल फाइल एंड देन यू कैन यूज दैट फाइल टू टू क्रिएट दैट वॉल्यूम. सो वो आप उससे और वॉल्यूम्स भी क्रिएट कर सकते हैं. So this is snapshot. और snapshots जो हैं they are a good solution for disaster recovery operations. For example, अगर in case अगर कोई आपकी storage for some disaster, कोई भी हो सकता है, earthquake हो सकता है, natural disaster हो सकता है, technical disaster हो सकता है, कोई cyber attack हो सकता है. So in all those cases अगर आपकी for example एक स्टोरेज है, अगर उसके आपने स्नैपशॉट्स लेके रखी हुई हैं, बैकअप रखे हुए हैं, तो दे कैन बी वेरी क्विकली यूज टू रीडिप्लॉय द सेम डिप्लॉयमेंट इन जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसको दोबारा रीडिप्लॉय आप कर सकते हैं. सो दैट इज अ वेरी गुड गुड थिंग टू हैव. Then you can also do encryption on the volumes. Volume को आप encrypt कर सकते हैं and that would not cost you anything. So it's just a setting that you enable कि मेरी जो volume है, EBS volume जो है उसको वो encrypted पड़ी हो. So that will give you lots of protection. So of course जब हम बात कर रहे हैं encryption की तो I'm not talking about encryption of the snapshot because that is just a file, right? So ये फाइल आप encrypt करके अगर रखती हैं S3 में तो ये एक एक ये चीज है कि you are encrypting your snapshots. दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी जो वॉल्यूम है आप उस वॉल्यूम को encrypt कर रहे हैं, which means that if someone without the key if that person wants to mount that volume, he would not get that volume. It's like if you have used big BitLocker. So BitLocker में क्या और होता है कि पूरी हमारी वॉल्यूम जो है वो इनक्रिप्ट हो जाती है एक की के साथ.
and then nobody can use that. For example, if you look at my this PC and you see like this my this local file, you see it is encrypted. So ये volume जो है ये encrypted है. So I because like it is encrypted using this bit locker. So of course किसी की से encrypt हुई हुई है. और मैं इसको जब मैं इसको unlock करूंगा तो फिर ये available होगी. So I'm not doing it in front of you, of course. Sterics भी नजर आ सकते हैं. So okay. सो इंक्रिप्शन हम कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम वी नो दैट अगर हम इन ट्रांजिट जब डेटा होगा वो तो इंक्रिप्शन हो रही होगी. सो यू कैन आल्सो हैव encrypted EBS volumes at no additional cost. So data moves between EC2 instances and the EBS volume inside AWS data centers in encrypted form as well. So for example आपकी अगर EBS volume आपने किसी इंस्टेंस के साथ क्रिएट की हुई है और वो आप मूव कर रहे हैं किसी और जगह पे लेके जा रहे हैं तो वो encrypted ही जाएगी. So it would be encrypted at rest and encrypted in transit. द लास्ट थिंग इज इलास्टिसिटी. ये भी अभी आपके साथ मैंने अभी शुरू में डिस्कस किया था कि वी कैन इंक्रीज our capacity or decrease our storage that we have bought, and that would be without any time. So आप उसको quickly कर सकते हैं. You can also change type of the storage. For example, आप जनरल पर्पस SSD यूज कर रहे हैं एंड देन यू रियलाइज कि नहीं यार हमारे लिए प्रोविजनड IO होनी चाहिए, तो आप उसकी डिफरेंट टाइप को भी स्विच कर सकते हैं while running the instance, और scale up or scale down भी कर सकते हैं. So all these things you can do. It's a very good storage solution that you can have in the form of raw storage. Okay, so up finally, just I hope that you have understood what block storage is. So block storage is just like a hard disk. आपने हार्ड डिस्क बाय की तो हार्ड डिस्क जो आपके पास एक स्टोरेज आ गई. हार्ड डिस्क बाय करते हैं चाहे वो SSD बाय कर रहे हैं या मैग्नेटिक डिस्क बाय कर रहे हैं, तो ये आपके पास स्टोरेज पूरी आ गई एंड यू नो दैट ओके आई हैव 1 TB ऑफ स्टोरेज. अब उस 1 TB का आपने क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल you will राइट अ फाइल सिस्टम पार्टीशन करें. आप उसको सॉरी पार्टीशन नहीं, आप उसको फॉर्मेट करेंगे, कोई फाइल सिस्टम उसके ऊपर राइट करेंगे जो भी आप टाइप का फाइल सिस्टम करें, और फिर उस स्टोरेज को माउंट करेंगे किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ. तो वो ये जो सारे काम है ये आप ब्लॉक स्टोरेज के थ्रू कर रहे होते हैं. वंस दैट इज डन, उसके बाद अगली बातें आती हैं कि अच्छा अब आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, कोई डेटाबेस डालना है, उसको उस you can even create sorry object storage once you have this block storage. So हम ये कह सकते हैं कि एक ब्लॉक स्टोरेज को यूज करते हुए हम एक ऐसा सोल्यूशन बनाएं, हम एक ऐसा क्लाउड सोल्यूशन बनाएं जो ऑब्जेक्ट स्टोरेज का की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो. बट वी कैन नॉट से कि हमारे पास हम एक ऑब्जेक्ट स्टोरेज को यूज करते हुए कोई ब्लॉक स्टोरेज हम प्रोवाइड करते हैं. दैट सर्विस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बिकॉज ऑब्जेक्ट स्टोरेज इज जस्ट सिंगल ऑब्जेक्ट. ऐसा नहीं है कि हम उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं. सो आप अगर इसको रिलेट करें एग्जिस्टिंग सिस्टम्स के साथ तो इट वुड बी मच इजियर कि इट्स जस्ट अ hard disk that you buy. Okay. So next thing is before I go to next thing, let me take another. Okay. The last thing about EBS volume here is about its pricing, right? So हमने EC EC2 को जब पढ़ा था, कंप्यूट को पढ़ा था, तो हमने उसका प्राइसिंग मॉडल भी डिस्कस किया था कि किस बेसिस पे कॉस्ट किया जाता है. फिर हमने नेटवर्किंग पढ़ी, उसका भी प्राइसिंग मॉडल देखा कि किस तरह से हमें डिफरेंट चीजों की कॉस्ट पड़ रही होती है. सो नाउ हमने EBS को पढ़ा है और इसी तरह हम जब ऑब्जेक्ट स्टोरेज को पढ़ेंगे उसकी भी प्राइसिंग मॉडल को हम डिस्कस करेंगे. So here now we are talking about how EBS is इसकी pricing model AWS कैसे कर रहा है. It has a very complex pricing model, and interestingly you see it is written in their own slides, like their own notes, that the pricing and provisioning of EBS are complex. In general, you pay for the size of volume and its usage. To learn more about the full, highly complex pricing and provisioning concepts of AC2, read this. So इसका
जो जो मॉडल है कोई इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट स्टिल इट इज यहाँ पे आके थोड़ा सा ना, यहाँ पे आसान है बट आईओप्स के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा ये ट्रिकी सा लग रहा होता है, बिकॉज डिफरेंट टाइप्स हैं और डिफरेंट चीजें हैं। बट इसका जस्ट आपके लिए, यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर दैट इट हैज फोर थिंग्स जिनके ऊपर ये प्राइसिंग हो रही होती है। सो दे चार्ज यू फॉर फोर डिफरेंट थिंग्स। द फर्स्ट थिंग इज वॉल्यूम। सो आपने कितने साइज की वॉल्यूम बाय की है। सो इट इज लाइक 100 GB, 1 TB, 10 TB। सो ऑब्वियसली जितना ज्यादा ज्यादा बड़े साइज की वॉल्यूम आप बाय करेंगे या प्रोविजन करेंगे, उतनी ज्यादा कॉस्ट आपको पड़ेगी। जितनी कम वॉल्यूम होगी उतनी कम कॉस्ट होगी। सो बेसिकली अगर आपने 1 TB की वॉल्यूम बाय की है एंड यू आर नॉट यूजिंग इट बट यू हैव बॉट इट, और एक महीना आपने रखी है, तो आपको उसकी एक महीना रखना जरूरी नहीं है ऑफ कोर्स, बट जस्ट जस्ट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं बता रहा हूँ कि अगर एक महीने बाद आप देखेंगे तो आपको उस वॉल्यूम की के सारे चार्जेस पे करने पड़ेंगे, बिकॉज आपने 1 TB रिजर्व की हुई थी। S3 में हम देखेंगे कि ऐसा नहीं है, उसमें ये है कि होगा कि जितना आप यूज कर रहे हैं उतनी आपको कॉस्ट पड़ेगी। तो यहाँ पे 1 TB है, आपने बस बाय कर ली, यूज नहीं भी कर रहे, कुछ उसके अंदर नहीं रखा हुआ, बट स्टिल यू विल बी पेइंग फॉर दैट कॉस्ट। सो एक तो ये कॉस्ट होगी। इसमें दूसरी कॉस्ट जो आती है इससे रिलेटेड, वो आईऑप्स की है, यानी कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। सो हमारे पास अगर एक इमेजिन करें हमने वॉल्यूम बाय की है 1 TB की, तो डेफिनेटली वी विल राइट सम फाइल्स ऑन दैट। उसको हम रीड भी करेंगे, राइट करेंगे, रीड करेंगे। सो ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हो रहे हैं और ये बेतहाशा होते हैं। सो इन आईओ ऑपरेशंस को भी Amazon चार्ज करता है, एंड ऑफ कोर्स इनको ये डिफरेंटली चार्ज करता है एसएसडी के केस में, प्रोविजनड एसएसडी के केस में, और एचडीडी के केस में। सो अगर अगर हम इसको इस तरह देखें कि वी स्टार्ट विद एचडीडी विच इज लाइक मैग्नेटिक, तो इसमें इट इज चार्ज बाय द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट टू द वॉल्यूम। सो अगर आप उस वॉल्यूम में जितनी भी रिक्वेस्ट करते हैं उसको एक्सेस करने की, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जितने भी होंगे, वो हर हर रिक्वेस्ट की कोई कॉस्ट होगी। ऑफ कोर्स थोड़ी सी होगी, बट स्टिल इट विल हैव सम कॉस्ट। अगर हम एसएसडी की बात करें, तो एसएसडी में जो इनपुट आउटपुट है, फॉर एग्जांपल आपने रिक्वेस्ट की, गेट और पुट की, ये जो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, ये या लिस्ट की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये वाली रिक्वेस्ट जो है इनकी कॉस्ट नहीं है, इट इज इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ एसएसडी वॉल्यूम्स। आईओ तो इंक्लूडेड है, लेकिन स्टिल यू आर चार्ज फॉर द प्रोविजनड आईओ, यानी कि आपने आपने कौन सी कितनी आईओ के लिए पे किया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस पिछली स्लाइड पे जाएं, तो यू सी यहाँ पे प्रोविजन आयो कितनी थी, 16,000 थी, इसमें 64,000 थी। सो इस तरह ही और ऑप्शंस जो होंगी उनमें किसी में 20,000 प्रोविजन आयो होगी। तो ये चीज जो है इसकी बेसिस पे आपकी कॉस्ट बनेगी, ठीक है, एसएसडी के केस में। और वो क्या कॉम्प्लेक्स है, वी डू नॉट नीड टू फाइंड द फार्मूला, या उसको हमें जानने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोविजन आयो और जनरल पर्पज आयो में आपको अमाउंट ऑफ जो जो प्रोविजन है उसके हिसाब से आपको कॉस्ट किया जाएगा। सो फॉर एग्जांपल, चार्ज बाय अमाउंट दैट यू प्रोविजन एंड आईओप्स मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ डेज दैट यू प्रोविजन फॉर द मंथ। तो यानी कि अगर आपने 4 दिनों के लिए वो बाय की है, तो पूरे महीने के लिए तो कॉस्ट नहीं होगी। तो इसका कैलकुलेटर, आई डोंट नो इफ इट इज ओपन और नॉट। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखें तो they have different pricing models. So I do not want to discuss this, but just for understanding, um, ये डिफरेंट एग्जांपल्स इन्होंने दी हुई है। सो हम किसी भी एक को ले लेते हैं। सो ईबीएस प्रोविजन आईओप्स एसएसडी आईओ2 वॉल्यूम, अगर ये है तो इसका कोई कोई कॉस्ट है, ठीक है। सो फॉर लेट्स से यू प्रोविजन एट 2000 GB, यानी 2 TB की, और 1000 आईओप्स वॉल्यूम फॉर 12 आवर्स आपने 30 डे मंथ के लिए बाय की है। सो अगर ये आपने बाय की है तो इसकी कॉस्ट कैसे होगी। तो पहली कॉस्ट तो ये होगी कि आप जिस रीजन में हैं उसमें क्योंकि ये याद रखना है आपने कि डिफरेंट रीजन्स की डिफरेंट रेट्स होंगे। फॉर एग्जांपल, यूएस में कुछ और पर जीबी कॉस्ट कुछ और होगी, पाकिस्तान में कुछ और होगी, यूरोप में कुछ और होगी। तो हर मुल्क की, हर रीजन की अपनी कॉस्ट, डिफरेंट कॉस्ट हो सकती है।
बट एनीवेज अगर इस रीजन में 0.125 पर जीबी पर मंथ अगर ये कॉस्ट है वॉल्यूम की, तो दैट मीन्स कि आपने पूरा महीना तो यूज नहीं की, आपने तो 12 आवर्स के लिए यूज की है, तो आपने इसको कैलकुलेट करना होगा फिर। सो दैट यू सी इट से दैट यू विल बी चार्ज $4 फॉर स्टोरेज। किस तरह से दिस जीबी मल्टीप्लाइड बाय इतनी टोटल कॉस्ट थी इतने सेकंड्स की डिवाइडेड बाय आपने कितना यूज किया, सो यू ओनली यूज फॉर 86,000 सेकंड्स पर डे। और उस रेट पे अगर आप देखें तो आपको ये कॉस्ट पड़ेगी। तो कितनी कॉस्ट बनी? 4.167 आपको ये वॉल्यूम की कॉस्ट पड़ गई। सो इट इज एग्जैक्टली लाइक दिस कॉस्ट, द नंबर वन कॉस्ट। फिर दूसरे नंबर पे आईओप्स आ जाते हैं, इनिशियल आईओप्स चार्ज। इसमें कुछ कुछ अमाउंट फ्री भी होगी, बट एडिशनल अमाउंट जो है वो फ्री नहीं होगी। तो इसमें आप देखें इनिशियल आईओप्स चार्ज जो है, इन अ रीजन दैट चार्जेस दिस पर provisioned IOPS per month for first 32,000 IOPS you should be charged इतना। और इनके डिफरेंट रेट्स हैं। लेट्स से आप इतना करते हैं तो कितनी होगी? एडिशनल स्टोरेज चार्ज, एडिशनल IOPS चार्ज। सो ये सारी एक्स्ट्रा इसमें आप देखें कि सारी कॉस्ट ऐड हो रही हैं। सो ये जो आईओप्स की कॉस्ट है, दिस इज बिट मोर कॉम्प्लेक्स, बट जो मिनिमम जो इनिशियल जो स्टोरेज की कॉस्ट है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें कोई इतना इशू नहीं है। इफ यू एवर वांट टू बाय सम एडब्ल्यूएस सर्विसेज, उनका एक कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर डॉट एडब्ल्यूएस। इसके अंदर आप जाके ना यू कैन जस्ट create your estimate. For example, I can create an estimate, and I say that okay, I'm इन दिस स्पेसिफिक रीजन, और यहाँ पे मैं कहता हूँ EBS। ठीक है, सो ईबीएस के अंदर हम जाएं अगर, तो ईबीएस को हम कहते हैं कॉन्फ़िगर करते हैं। So it will show up me a calculator. So ये डिस्क्रिप्शन आप इसको कोई नाम दे दें, रीजन बता दी, एंड देन आई से नंबर ऑफ वॉल्यूम्स कितनी है, मेरी एक ही वॉल्यूम है। एवरेज ड्यूरेशन ईच इंस्टेंस रन्स, सो एक महीने में कितना ये इंस्टेंस रन करेगा। सो ये आपने बता दिया ईबीएस वॉल्यूम, क्योंकि इंस्टेंस के साथ कनेक्टेड होगी, तो ये कितना टाइम रन करेगा वो बता दिया आपने। आपने स्टोरेज कौन सी यूज करनी है, यू कैन सी हेयर लाइक इट हैज जनरल एसएसडी GP2 है, एसएसडी GP3 है, एसएसडी IO1 है, एसएसडी IO2 है, थ्रूपुट ऑप्टिमाइज HDD ST1 है, कोल्ड HDD है, मैग्नेटिक प्रीवियस जनरेशन है। सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, हमने स्लाइड्स में तो बहुत थोड़ी सी देखी हैं, बट इनको अपनी मर्जी की जो होती है वो हम चूज कर लेते हैं। एंड देन स्टोरेज अमाउंट पर वॉल्यूम 30 GB चाहिए आपको, वॉल्यूम एक ही वॉल्यूम हमने बाय की है, तो 30 GB चाहिए, या हम वी कैन चेंज इट टू टेराबाइट और मेगाबाइट। सो वी कैन से ओके वी नीड नॉट 30 GB, वी नीड टू या 2 टेराबाइट कर लेते हैं। ठीक है, सो इट्स लाइक इजियर, 2 टेराबाइट हम कर लेते हैं। आजकल इतनी स्टोरेज तो होनी चाहिए बंदे के पास जरा खुश रहने के लिए। अच्छा, स्नैपशॉट फ्रीक्वेंसी, अच्छा ये तीसरी, ये नेक्स्ट चीज है ना। सो लेट लेट मी गो टू द स्लाइड अगेन एंड डिस्कस, लाइक वी हैव टॉक्ड अबाउट दीज टू थिंग्स नाउ। नेक्स्ट थिंग इज स्नैपशॉट्स। तो स्नैपशॉट अगर आपने एनेबल नहीं की हुई, तो ऑफ कोर्स इसकी कोई कॉस्ट नहीं होगी अगर हम स्नैपशॉट लेना ही नहीं चाह रहे। लेकिन अगर हम स्नैपशॉट्स लेना चाह रहे हैं एंड वी हैव एनेबल्ड इट, तो हम कहेंगे एडिट कॉस्ट फॉर Amazon EBS स्नैपशॉट्स टू Amazon S3 इन पर GB मंथ ऑफ डेटा। सो बेसिकली ये EBS की कॉस्ट नहीं है, ये वो कॉस्ट है जो ये फाइल बनेगी, स्नैपशॉट जो बनेगी, उस स्नैपशॉट को आपने स्टोर भी तो कहीं करना है, और उसको स्टोर करना है आपने S3 के अंदर एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट स्टोरेज में एज एन ऑब्जेक्ट स्टोर करना है। तो इसका जो भी साइज होगा वो आपको S3 में चार्ज होगा, तो ये वो वाली कॉस्ट होगी। सो लेट्स सी, अब यहाँ पे कहते हैं कि हमें स्नैपशॉट्स कितनी चाहिए। ये तो किधर गया स्नैपशॉट्स फ्रीक्वेंसी। आपको क्या चाहिए, हम चाहते ही नहीं है, हमें हर घंटे में चाहिए। सो ऑफ कोर्स ये जो स्नैपशॉट्स बनेंगी, इनको आपने एससी स्टोरेज में जो स्टोर करना है, इसकी जो कॉस्ट होगी वो भी इसमें हो सकती है। सो इफ आई डोंट टेक एनी स्नैपशॉट, जस्ट टू मेक द कैलकुलेशन सिंपलर, तो ठीक है हम ये कर देते हैं। फिर रिस्टोर, ये भी कोई ऑप्शन है, बट EBS डायरेक्ट APIs फॉर स्नैपशॉट्स, ये स्नैपशॉट स्पेसिफिक आ रही हैं। तो हमारे पास एक एस्टिमेट बन गया, जिसको हम यहाँ पे अब देख सकते हैं।
शो डिटेल्स करना पड़ेगा इधर कहीं पे, शो कैलकुलेशंस। सो लेट्स सी इसने कैसे कैलकुलेट की है। स्टोरेज अमाउंट पर वॉल्यूम 2 टेराबाइट की एक ही वॉल्यूम है, तो हमने इतनी इतनी वॉल्यूम बाय की है, सो इट इज वन थिंग। इसकी प्राइसिंग कैलकुलेशन वन वॉल्यूम की 730 इंस्टेंस आवर्स के लिए, इतनी देर के लिए जब रन होगी, तो उसने इसकी कैलकुलेशन जो की वो की $204। ठीक है। स्नैपशॉट की कोई कॉस्ट नहीं है, स्टोरेज कॉस्ट बस ये है हमारी, और इसमें आईओप्स शायोप्स की कोई कॉस्ट नहीं है। तो यू सी लाइक हमारे जो नंबर ऑफ आवर्स थे या आईओप्स थी, वो उस पर डिपेंड करता है, वो भी इसमें कम है। इसमें मजीद हम चीजें ऐड करेंगे तो डेफिनेटली ऐड इसमें चीजें हो जाएंगी। देखें, अगर आप इसमें बाद में देखें, यू सी EBS डायरेक्ट APIs फॉर स्नैपशॉट्स, एंड देन वी कैन ऐड दोज थिंग्स, एंड इसकी कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी। Okay. So there are many options, like it was just an overview कि ये चीज ऐसे भी होती है। And then finally data transfer cost. So data transfer cost ये है कि EBS में आपने याद रखना है कि जब भी आप वॉल्यूम को डेटा सेंड करेंगे, फॉर एग्जांपल इमेजिन करें कि अ, हमारा जो एक एक हाइब्रिड क्लाउड है, या VPN कनेक्टेड है हमारा क्लाउड के साथ, तो हमने यहाँ से डेटा, फॉर एग्जांपल नादरा ने अपना डेटा amazon के क्लाउड पे अगर सेंड करना है, तो जो जो नादरा के डेटा, पाकिस्तान से डेटा जब amazon क्लाउड के अंदर जाएगा, जो विच इज इनबाउंड डेटा ट्रांसफर, वो फ्री होगी चाहे जितनी भी हो। लेकिन वंस इट इज इन द amazon क्लाउड, वहां पे EBS के अंदर जो पड़ा हुआ है, हम EBS की बात कर रहे हैं अभी, तो EBS के अंदर डेटा अगर वहां पे पड़ा है, तो अगर वो रीजन चेंज होगी, अगर रीजन से बाहर निकलेगा, तो आउटबाउंड डेटा ट्रांसफर अक्रॉस रीजन्स, इट विल कॉस्ट यू सम मनी। सो अगर अगर लास्ट टाइम हमने क्लाउड क्लाउड फ्रंट की बात की थी, सो यू कैन थिंक ऑफ कि अच्छा, क्लाउड फ्रंट अगर आपने खुद डिप्लॉय करना है, CDN आपने खुद बनाना है, तो इसका मतलब है कि अगर इस लेक्चर की वीडियो जो है, जो 1 GB की फाइल है, वो अगर मैं राइट करूंगा EBS के अंदर, तो दैट वुड नॉट कॉस्ट मी एनीथिंग। बट अगर वो डेटा जब जब उसको रीड किया जाएगा, वो उसको डाउनलोड किया जाएगा, और उस रीजन से हम बाहर निकलेंगे, तो देन दैट वुड कॉस्ट मी मनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी मुझे कॉस्ट पड़ेगी। सो आउटबाउंड डेटा ट्रांसफर की कॉस्ट होगी। तो स्टोरेज में यूजुअली आपको यही कॉस्ट नजर आ रही होंगी, जस्ट रिमेंबर देम कि S3 में भी आपको यही इसी तरह का पैटर्न नजर आएगा कि वॉल्यूम इटसेल्फ, रीड राइट, देन उसकी उसकी जो बैकअप्स हैं, और उसका जो डेटा ट्रांसफर है, रिक्वेस्ट जो है, वो नहीं, अमाउंट ऑफ डेटा जो ट्रांसफर हो रहा है, नॉट द रिक्वेस्ट। ये जो है, इट इज रिक्वेस्ट, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट दैट वी मेक। फॉर एग्जांपल रिक्वेस्ट ये है ना कि प्लीज लिस्ट ऑल द फाइल्स इन माय डायरेक्टरी। सो ये एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट टू वॉल्यूम है ये। और डेटा ट्रांसफर ये है कि वो लिस्ट होगी, जब फिर मैं कहता हूँ कि डबल क्लिक करता हूँ, तो इट मींस आई एम डाउनलोडिंग दैट। सो रिक्वेस्ट तो एक ही है, लेकिन डाउनलोड जो है वो उससे 400 GB का डाउनलोड हो रहा हो, तो वो डेटा ट्रांसफर हो जाएगी। तो दैट इज द नेक्स्ट थिंग। सो इस तरह से हमारी EBS वॉल्यूम वर्क करती है। And that's all about EBS volumes. It's a short summary, and I would now like to, uh, because we have 4 5 minutes, so I would now like to run this स्मॉल, ये आपके आपके फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है, और स्लाइड्स के अंदर ही लिंक है इसका। सो दिस इज शॉर्ट वीडियो। अगर आपको इसकी आवाज ना आ रही हुई, तो आपने मुझे बताना है, बट अगर आवाज आ रही हो तो चुप करके सुने, एंड आफ्टर दैट वी विल एंड द क्लास। ये 5 मिनट की वीडियो है। कैन यू हियर? Welcome to the demonstration on provisioning an elastic. No, sir. नहीं आ रही आवाज, अच्छा। आई डोंट नो अब इसको मैं कैसे रिले करूं, बट नहीं कर सकता तो उसका फिर एक तरीका ये है कि मैं इसको ऑनलाइन चला दूं, तो भी पता नहीं क्या होगा। बट एनीवेज, ओके, आपने इसको खुद देख लेना है, ठीक है। सो इट इट विल जस्ट शो यू, EBS को थोड़ा सा आपको दिखा देगी। सो इफ यू लुक The एट दिस sources EBS के we बारे में कि first कहाँ से आप इसको to into. See this left hand see the elastic on the देखते हैं। volume. The volume वॉल्यूम्स के engine अंदर आप वॉल्यूम क्रिएट कर रहे is हैं, it's going to we आपने टाइप सेलेक्ट की, workflows. Garrett
and Apps then holds not select through इसमें से or आपकी we जो merge. मर्जी की है Leave it और for साइज आपका क्या gigs होगा वो आपने by बता दिया है। 3 IOPS आपने बता दिए, इसके बाय डिफॉल्ट ये इतने zone. IOPS हैं। If अवेलेबिलिटी it जोन would give बता us the दी information और ऑफ कोर्स अवेलेबिलिटी जोन आप वो वाली बताएंगे जिसमें आपका EC2 इंस्टेंस है, अदरवाइज ये उसके साथ अटैच नहीं हो सकेगी। about the throughput for if we तो choose exist देन option here volume. स्नैपशॉट We'll leave the आईडी rest of the एनक्रिप्ट करनी है options कि as नहीं default. करनी। Volume's been तो created. ये We can वॉल्यूम close क्रिएट हो this गई window in gigabyte, and और I can फिर आपने attach that अगर volume आपने to an एक EC2 volume and gigabyte volume. सो अभी हम And here you can EC2 see के we have our पोर्टल 10 पे हैं, तो EC2 के अंदर हम अब इस वॉल्यूम को अटैच करना चाह रहे हैं किसी इंस्टेंस के gigabyte साथ। volume. तो आप ये देख I can सकते हैं कि ये select that volume and I can attach that volume to an EC2 instance. सो यहाँ पे इसने वॉल्यूम सेलेक्ट करके अटैच जब किया तो देन हम ये बता सकते हैं कि कौन से इंस्टेंस के साथ अटैच करनी है। सो यू कैन सी जब I select जो on the एग्जिस्टिंग एक instance, it कोई shows me the instances available जो in this अवेलेबल इंस्टेंस होगा वो availability नजर आ zone. जाएगा। I select which EC2 instance. It's going to create a device on that एंड EC2 देन instance called slash ये जो इंस्टेंस इसके साथ अटैच हुआ तो इसने ऑफ कोर्स इसको इस जगह के ऊपर इस जगह पे ये लोकेट होगी अभी वॉल्यूम। तो इसको ऑफ कोर्स फिर हमें इसको फाइल सिस्टम इसके ऊपर लिखना पड़ेगा एंड देन वी विल माउंट दैट वॉल्यूम। dev slash SD. Touch that volume. सो यहाँ पे ये काम खुद ब खुद हो गया ना। सो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप EC2 इंस्टेंस से Refresh the किसी page, इंस्टेंस को अगर and आप we can see अटैच करते हैं we तो वो do an कैसे करेंगे। LSD तो फॉर created. एग्जांपल ये कोई इंस्टेंस है उसके अंदर आपको अब ये नजर आ रही है वॉल्यूम, बट ये बता रहा है कि ये अभी हमने इसके साथ अटैच की है ना वॉल्यूम। नाउ नाउ वी वांट टू इसको हमने फाइल सिस्टम इसके ऊपर कोई बताना है कि कौन सा फाइल सिस्टम होगा, फॉर्मेट करना है उस पे एंड देन वी विल माउंट दैट टू दिस इंस्टेंस। माउंट नहीं हुई अभी। And you can see that it's a one wave on तो tell the file ये system फाइल has been सिस्टम इसके created on ऊपर that device. लिखा Now गया एंड देन T slash E, इसको you can माउंट see कर that रहे हैं here is the इस device name प्लेस पे। and then the तो सो यहाँ पे ये वॉल्यूम इसने अम, ये वाली जो अभी हमारी वॉल्यूम है ब्लॉक वॉल्यूम जो है इसको इस लोकेशन पे माउंट कर दिया। सो दैट मीन्स कि इस लोकेशन पे वी कैन जस्ट लुक एट दी contents and then we can see these are the files on this volume. as you can see to instance. Now choose, I can create that volume, I can delete that volume, So I इसको आप modify, create, delete बहुत सारी options can के साथ आप modify attach it, कर सकते हैं। increase the size of it perhaps. So इस वीडियो को देख लेने थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं that would be useful. Next would also be a lab on this. So ये लैब में मैं अपलोड कर दूंगा, शेयर कर दूंगा EBS की। तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो दैट वुड बी लाइक उसमें आपने ये काम करने होंगे। इंस्टेंस क्रिएट किया, अटैच किया, ये जो भी वीडियो में चीज चल रही थी। सो ये लैब ऑपरेशन लाइक इट विल बी 30 मिनट्स, मोर देन नॉट मोर देन 30 मिनट्स टास्क। तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेक्शन करेंगे। फ्यू